Hello student, I am Neha Miklani. Today I am here to give you the presentation on the topic of types of research methods with examples, part 9. This is my ninth video in this topic. In this video I am going to discuss the experimental research types. In my previous video I have discussed the meaning of experimental research, what are the characteristics of experimental research, and what are the types of experimental research. And in our this video we are going to discuss the next types of the experimental research. So let's start our video. Starting my video, I just want to say that just download the Divagar Education Hub app from the Google Play Store. In this app you can easily get the UGC net paper 1 free online classes, and you can also get the 150 plus mock test from the different subjects which you are going to apply in the UGC net. And then you can also read free study notes from the paper 1 and 2, and you can also get some announcements are being done under the Divagar Education Hub, and the live classes which are going to be conducted in the previous days also you can get it, and you can also chat with another students in this app also. So please, I just recommend you that you have to upload or install Divagar Education Hub app from Google Play Store. So in my previous video, I have discussed the experimental research design. In experimental research design, I have discussed that there are 4 types of experimental research. First one is pre-experimental design. Next is true experimental design, and third is quasi-experimental design, and last is our factorial design. In pre-experimental design, there are 3 types of pre-experimental design. First one is one-shot case study design. Next is one group pre-test post-test design. Second is statistic group comparison. And in our true experimental design, I have 3 types of experimental design. Post-test only control group design. Next, pre-test post-test control group design. Next, Solomon 4 group design. And in quasi-experimental design, there are 3 types of experimental design: non-equivalent control group, time series, multiple time series, and next is our factorial design. In pre-experimental design, I have discussed in my previous video about all these 3 designs. First one is one-shot case study design. In one-shot case study design, you have only one shot. In this shot, you have to say that you have to do the experimental. ठीक है, आपको उसी टाइम पे एक्सपेरिमेंटल कंडक्ट करना पड़ेगा. आपके पास एक ही शॉट है, चाहे आप उस पर 4 रन ले लो, 6 रन ले लो, या फिर आप आउट हो जाओ, या फिर आप 2 रन लो. दैट डिपेंड अपॉन यू. ठीक है, तो आपके पास एक ही शॉट होगा, उस पर एक ही ट्रीटमेंट लगा के आप पोस्ट टेस्ट जो रिजल्ट होंगे उसको आप कलेक्ट करोगे. तो इसमें एक ही ग्रुप होता है, दैट इज़ अवर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया है नेक्स्ट अवर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन. वन ग्रुप मतलब आपके पास एक ही ग्रुप होगा, आप एक ही ग्रुप के ऊपर ट्रीटमेंट लगाओगे, उसके ऊपर ही प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन करोगे. प्री टेस्ट मतलब प्री मतलब टेस्ट करने से पहले, पोस्ट मतलब टेस्ट करने के बाद. ठीक है, तो प्री टेस्ट एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एंड पोस्ट टेस्ट एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस आर. इसमें प्री टेस्ट में आप क्या करते हो, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स के प्री टेस्ट को आप कलेक्ट करोगे, आप उनके डाटा को स्टडी करोगे पहले, ट्रीटमेंट से पहले, फिर आप ट्रीटमेंट लगाओगे, फिर उसके बाद का आप रिजल्ट जो है स्टडी करोगे. सो दैट इज़ अवर बिफोर एंड आफ्टर डिज़ाइंस. नेक्स्ट अवर, इसमें मैंने ड्रग्स की एग्जांपल ली थी प्रीवियस वीडियो में. नेक्स्ट वी हैव स्टैटिस्टिकल ग्रुप कंपैरिजन. इन स्टैटिकल ग्रुप कंपैरिजन देयर शुड बी 2 ग्रुप्स. ठीक है, आप 2 ग्रुप्स के बीच का कंपैरिजन आप जनरेट करोगे. एक होता है आपके पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक होता है आपके पास कंट्रोल ग्रुप. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या होगा, आप जिनके ऊपर ट्रीटमेंट लगाओगे उसका फिर आप आफ्टर द रिज़ल्ट आप जो है स्टडी करोगे. कंट्रोल ग्रुप क्या होता है, जिसके ऊपर आप ट्रीटमेंट नहीं लगाओगे, ठीक है, बट आप उनके रिजल्ट को आप स्टडी करोगे.
फिर आप उनके ऊपर इफेक्ट देखते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास 2 ग्रुप्स होंगे, उन दोनों ग्रुप्स का आप बीच में कंपैरिजन करके चलोगे। ठीक है, तो जैसे ये मैंने एग्जांपल ली थी उस टाइम पे। अब हम करेंगे प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के प्रॉज एंड कॉन्स, वो भी मैंने डिस्कस किए हैं। ठीक है, आज हम करेंगे ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। इन ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन वी हैव 3 टाइप्स ऑफ डिज़ाइन। फर्स्ट वन इज़ पोस्ट टेस्ट ओनली ग्रुप डिज़ाइन, नेक्स्ट इज प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन, नेक्स्ट सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन। इनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। सबसे पहले इसमें ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में पहला फीचर जो यूज़ होता है दैट इज़ अवर मैनिपुलेशन। इसमें हम मैनिपुलेशन टेक्निक को यूज़ करते हैं। मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है? कंट्रोल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल बाय द रिसर्चर थ्रू ट्रीटमेंट या इंटरवेंशंस। मैनिपुलेशन में क्या होगा, आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को कंट्रोल करोगे। ठीक है, या आप थ्रू ट्रीटमेंट के थ्रू कंट्रोल करो, चाहे आप इंटरवेंशंस के थ्रू इनको कंट्रोल करो। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को आपने कंट्रोल करना है ट्रीटमेंट के साथ या फिर आप इंटरवेंशंस के साथ। नेक्स्ट इज़ कंट्रोल। सेकेंड फीचर जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में यूज़ होता है वो है कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? वी शुड हैव टू कंट्रोल द एक्स्ट्रानियस वेरिएबल, वी शुड हैव टू कंट्रोल द इफेक्ट ऑफ द एक्स्ट्रानियस वेरिएबल। एक्स्ट्रानियस वेरिएबल को हमने कंट्रोल करना है। ठीक है, एक्स्ट्रानियस वेरिएबल जो होते हैं वो इस तरीके के वेरिएबल्स होते हैं कि जिनको हम स्टडी में कंसीडर करें चाहे ना करें, बट इनका इफेक्ट आपकी स्टडी के ऊपर पड़ता रहता है। नेक्स्ट जो है आप चीज़ फॉलो करते हैं वो है रेंडमाइजेशन। रेंडमाइजेशन में क्या होता है? एवरी सब्जेक्ट हैव इक्वल चांस ऑफ बीइंग असाइंड टू एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप। हर एक सब्जेक्ट के पास इक्वल चांस होगा, चाहे वो ऐसा एक्सपेरिमेंटल का और कंट्रोल का। मतलब क्या है, अगर आप 2 ग्रुप्स को लेके चल रहे हो, आप एक ही ग्रुप्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट मत करो। एक टाइम पे आप एक ग्रुप के ऊपर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करो और दूसरे के ऊपर कंट्रोल ग्रुप बना के उसके ऊपर आप इफेक्ट देखो। दूसरे टाइम पे आप कंट्रोल ग्रुप के ऊपर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करो, दूसरे ग्रुप को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के तौर पर लो। फिर उसके बाद जो ए ग्रुप जिसको आपने पहले ट्रीटमेंट में आपने एक्सपेरिमेंटल माना था उसको कंट्रोल बना दो। ठीक है, तो रेंडमाइजेशन की पॉलिसी आपने फॉलो करके चलना है। रैंडम असाइनमेंट हेल्प इंश्योर दैट देयर इज़ नो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन दैट विल इन्फ्लुएंस द वेरिएबल एंड मैस अप द रिजल्ट। रैंडम असाइनमेंट क्या होता है? एक हेल्प करते हैं, आपको इंश्योर करते हैं कि कोई भी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन नहीं है। यहाँ पे आप लोगों ने कोई भी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस पहले से ही आप प्री एज्यूम करके मत चलो जो कि आपके वेरिएबल्स को अफेक्ट करे। So that are the 4 things that should have to be followed while doing the true experimental design study. First one is manipulation, second is control, and third is randomization, and fourth is random assignment। जो भी होती हैं उनको प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस में लेके चलो। ठीक है, सो नेक्स्ट अवर आ जाता है, इसमें हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी हमारी प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में। एक है पोस्ट टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। नेक्स्ट हमने पढ़ा है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। नेक्स्ट है सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन। अब इनको 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो है पहला है पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। ओनली कंट्रोल ग्रुप पोस्ट टेस्ट मतलब टेस्ट करने के बाद स्टडी करनी है, कोई भी प्री टेस्ट की स्टडी नहीं होगी। कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन होगा। ठीक है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 रैंडमली असाइंड ग्रुप। इसमें आप लोगों ने 2 रैंडम असाइनमेंट के साथ 2 ग्रुप्स आपने लेने हैं, जैसे मैंने इसमें लिए हैं। रैंडम असाइनमेंट आपने देनी है। ठीक है, एक टाइम पे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, दूसरे टाइम पे कंट्रोल ग्रुप है। ठीक है, कंट्रोल ग्रुप जो आप एक टाइम पे बना लो, दूसरे टाइम पे जो कंट्रोल ग्रुप आपका पहली स्टडी में था उसको आपको दूसरी स्टडी में उसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्रिएट कर दो। रैंडमाइजेशन की पॉलिसी अपने लेके चलनी है। रैंडमाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बताया है कि आपने रैंडम असाइनमेंट देनी है, एक टाइम पे 1 ग्रुप दैन दूसरे टाइम पे दूसरा ग्रुप। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 रैंडमली असाइंड ग्रुप दैट इज़ एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल। ठीक है, बट नीदर ऑफ विच इज़ प्री टेस्टेड बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। इसमें क्या कहने की बात वो बोल रहे हैं कि आप लोगों ने 2 ग्रुप तो लेने हैं, उनको रैंडम असाइनमेंट भी देनी है, बट आपने कोई भी प्री टेस्ट रिजल्ट नहीं चेक करना है।
ठीक है। आपका जो भी रिजल्ट की आप जो टेस्टिंग होगी वो पोस्ट टेस्ट असाइनमेंट पे ही होगी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें ली है टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ एजुकेशनल इंटरवेंशन रिलेटेड टू यूरिनरी इनकॉन्शियसनेस ऑन द सब्सिक्वेंट हेल्प सीकिंग बिहेवियर ऑफ ओल्डर अडल्ट्स। हम लोगों ने स्टडी करना है एजुकेशनल इंटरवेंशंस के ऊपर, कि एजुकेशनल के पार्ट्स के ऊपर जो कि यूरिनरी जो है इनकॉन्शियसनेस को चेक करता है और बिहेवियर को चेक करता है अडल्ट्स के। तो इसके लिए हमने रैंडम असाइनमेंट की है, 2 ग्रुप्स हमने लिए हैं। एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर ट्रीटमेंट लगाई, देन उसका रिजल्ट को चेक किया, पोस्ट टेस्ट रिजल्ट को हमने चेक किया। फिर कंट्रोल ग्रुप को तो ऐसे ही रहने दिया और उसके बाद इसका भी पोस्ट टेस्ट रिजल्ट हमने चेक किया। तो ये हमारा कौन सा स्टडी होती है, प्री एक्सपेरिमेंटल। अब हम इसको एक और डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। 2 ग्रुप्स हम लेंगे, रैंडमली असाइनमेंटल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लिया और रैंडमली हमने सिलेक्टेड कंट्रोल ग्रुप लिया। जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था उसके ऊपर ट्रीटमेंट लगाई, पोस्ट टेस्ट इफेक्ट को हमने चेक किया। से कंट्रोल ग्रुप हमने लिया, उसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट नहीं लगाई और उसके ऊपर पोस्ट टेस्ट रिजल्ट को हमने चेक किया, ठीक है। सो दैट इज़ अवर पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन। इसको हमने एक और एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया। मैंने 100 रैंडमली सिलेक्टेड मैंने टीचर्स लिए, ठीक है। अब 100ली सिलेक्टेड जो मेरे टीचर्स थे उनमें से मेरे 2 ग्रुप्स मैंने क्रिएट किए। 50 टीचर्स को एक ग्रुप में रखा, 50 टीचर्स को एक ग्रुप में रखा। ये वाला ग्रुप हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गया, ये वाला एक ग्रुप हमारा नॉन एक्सपेरिमेंटल या कंट्रोल ग्रुप हो गया, ठीक है। अब इन 50 टीचर्स के ऊपर डांस की ट्रेनिंग दी, मतलब एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, इनके ऊपर ट्रेनिंग दी, फिर इनका पोस्ट टेस्ट रिजल्ट चेक किया। अब जो कंट्रोल ग्रुप था इसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट नहीं लगी और इनका ऐसे ही पोस्ट टेस्ट रिजल्ट को हमने चेक किया, ठीक है। क्लियर हो गया कि पोस्ट टेस्ट में क्या करते हैं, यू विल स्टडी ओनली द पोस्ट टेस्ट इफेक्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। एंड नाउ कम टू द प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली। प्री टेस्ट मतलब you will have to study the pre-test effect also. It is the subjects are randomly assigned to either the experimental or control group. इसमें भी आपको क्या काम करना है, randomly assignment लेनी है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी लेना है, कंट्रोल ग्रुप भी लेना है। द इफेक्ट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन बोथ द ग्रुप इज सीन बिफोर द ट्रीटमेंट, ठीक है। आप लोगों को इफेक्ट पहले भी चेक करना है, बिफोर द ट्रीटमेंट भी आपको प्री टेस्ट भी इफेक्ट चेक करना है। Later the treatment is carried out on the experimental group only and after the observation of dependent variable is made on both the groups to examine the effect of the manipulation of independent variable on the dependent variable. इनके हम बाद का रिजल्ट भी चेक करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट जो डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर पड़ रहा है, प्री टेस्ट इफेक्ट भी चेक करेंगे और पोस्ट टेस्ट इफेक्ट को भी हम चेक करेंगे, ठीक है। तो इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे, जैसे कि इसमें पहले मैं आपको डायग्राम समझाऊंगी, ठीक है। डायग्राम हम समझेंगे पहले। रैंडमली असाइनमेंट मैंने ली है, ठीक है। रैंडमली असाइनमेंट ली है, 2 तरीके के ग्रुप फॉर्म्ड किए हैं। प्री टेस्ट रिजल्ट इसका भी देखा, प्री टेस्ट रिजल्ट इसका भी देखा। अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर मैंने ट्रीटमेंट लगाई, उसका पोस्ट टेस्ट रिजल्ट भी देखा, ठीक है। अब कंट्रोल ग्रुप के ऊपर कोई असाइनमेंट नहीं थी बट उसका भी पोस्ट टेस्ट रिजल्ट मैंने आइडेंटिफाई किया, ठीक है। तो अब इसमें एग्जांपल मैंने देखी है, सच एज ए डिज़ाइन कैन बी यूज्ड फॉर एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर देयर बाय इंटरवेंशंस फॉर पेशेंट्स विद ब्रेस्ट कैंसर्स। हम लोगों ने इसमें डिज़ाइन कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हैं जिसमें हम असेस करेंगे बिहेवियर को, जिनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है उनके बिहेवियर को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ अवर प्री टेस्ट विद एक्सपेरिमेंटल ग्रुप डिज़ाइन, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल के तौर पे और लेंगे। रैंडमली असाइनमेंट मैंने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लिया, रैंडमली असाइनमेंट मैंने ग्रुप कंट्रोल ग्रुप लिया, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर ट्रीटमेंट लगी, पहले प्री टेस्ट रिजल्ट देखा, फिर ट्रीटमेंट लगाई, फिर पोस्ट टेस्ट रिजल्ट देखा। इसका भी प्री टेस्ट रिजल्ट देखा, फिर पोस्ट टेस्ट रिजल्ट को चेक किया,
ठीक है। तो ऐसे ही जैसे मैंने 50 टीचर्स की एग्जांपल ली थी, ठीक है, 100 टीचर्स थे, उनको रैंडमली मैंने 50 टीचर्स यहाँ रखे, 50 टीचर्स मैंने यहाँ रखे, ठीक है। पहले इनका प्री टेस्ट रिजल्ट देखा, फिर इसका भी प्री टेस्ट रिजल्ट देखा, इनके ऊपर ट्रीटमेंट लगाई, डांस इनको ट्रेनिंग दी और पोस्ट टेस्ट रिजल्ट चेक किया। इनके ऊपर कोई ट्रीटमेंट नहीं लगी, फिर इनका पोस्ट टेस्ट रिजल्ट चेक किया। सो दैट इज अवर दिस ग्रुप। नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ अवर द वीडियो, that is the Solomon 4 group design. In Solomon 4 group design there are 2 experimental group. Solomon 4 group design में क्या होगा, आपके पास दो ग्रुप से 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ए, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बी, और 2 कंट्रोल ग्रुप होंगे, कंट्रोल ग्रुप 1 एंड कंट्रोल ग्रुप 2. द इन्वेस्टिगेटर रैंडमली असाइन सब्जेक्ट टू 4 ग्रुप्स. जो इन्वेस्टिगेटर्स होगा वो इन 4 ग्रुप्स के ऊपर रैंडमली जो है असाइनमेंट देगा, ट्रीटमेंट्स उनको रैंडमली देगा. वन ऑफ द 4 ग्रुप्स, ओनली एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1 and control group 1 receive the pre-test followed by the treatment on the experimental group 1 and experimental group 2. आउट ऑफ द 4 ग्रुप्स, इनमें से 4 ग्रुप्स में से एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, दूसरा कंट्रोल ग्रुप है, उनके ट्रीटमेंट को प्री टेस्ट फॉलो किया जाएगा और उनको फॉलोड किया जाएगा दूसरे ग्रुप के साथ. इसको डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन करेंगे. फाइनली ऑल द 4 ग्रुप रिसीव पोस्ट टेस्ट वेयर द इफेक्ट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ द स्टडी आर ऑब्जर्व्ड एंड कंपैरिजन इज मेड ऑफ 4 ग्रुप्स टू असेस द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल. फाइनली क्या होता है, इन 4 ग्रुप्स को सभी को ट्रीटमेंट जो है लेनी पड़ती है, फिर उनके इफ़ेक्ट को हम देखते हैं और स्टडी करते हैं, कंपैरिजन करते हैं और रिजल्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे. अब सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन जो होता है इज़ बिलीव टू बी द मोस्ट प्रेस्टीजियस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन. ये बहुत ही प्रेस्टीजियस एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है. ज़्यादातर ये हर एक स्टडी में इसको फॉलो किया जाता है बिकॉज इट मिनिमाइज द थ्रेट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी. बिकॉज इस तरीके की स्टडी में जो होता है इंटरनल वैलिडिटी का और इंटरनल वैलिडिटी जो हमने डिस्कस की है, इनका अफेक्ट जो होता है वो कम शो होता है. ठीक है, तो इनको हम रेंडमली देखते हैं किस तरीके से हम कलेक्ट कर सकते हैं. एग्जाम्पल मैंने ली है, ठीक है, जैसे डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन करते हैं. रैंडमली मैंने असाइन प्रोजेक्ट लिया है, रैंडमली मेरा एक प्रोजेक्ट असाइन हुआ है. इसमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1 है, फिर कंट्रोल ग्रुप 1 है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2 है, कंट्रोल ग्रुप 2 है. तो 4 ग्रुप्स लिए हैं, 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और 2 कंट्रोल ग्रुप. अब ट्रीटमेंट पहले लगानी है, पहले ट्रीटमेंट लगाएंगे. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1 की प्री टेस्ट रिजल्ट को चेक किया और इसका भी प्री टेस्ट रिजल्ट, कंट्रोल ग्रुप का भी प्री टेस्ट रिजल्ट चेक किया और ट्रीटमेंट लगाने के बाद पोस्ट टेस्ट बिहेवियर को भी चेक किया. अब दूसरे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर प्री टेस्ट रिजल्ट कोई भी चेक नहीं करना है, ठीक है, और सीधा ट्रीटमेंट लगाई और इनके पोस्ट टेस्ट बिहेवियर को चेक किया और सभी का कंपैरिजन लास्ट में कर दिया. ठीक है, सो दैट इज़ अवर एक्सपेरिमेंटल सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन स्टडी है. अब इसको और डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं. सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ए लिया, उनका प्री टेस्ट बिहेवियर देखा. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बी लिया, उसका कोई भी प्री टेस्ट रिजल्ट नहीं चेक करना है, सभी दोनों के ऊपर ट्रीटमेंट लगाई, पोस्ट टेस्ट रिजल्ट को चेक किया. कंट्रोल ग्रुप ए लिया, उसका प्री टेस्ट बिहेवियर चेक किया, फिर पोस्ट टेस्ट रिजल्ट को आइडेंटिफाई किया. फिर कंट्रोल ग्रुप बी लिया, उसका सीधा. मतलब क्या है कहने का, आपका जो ग्रुप ए है, कंट्रोल ग्रुप ए, कंट्रोल ग्रुप बी, सॉरी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ए, कंट्रोल ग्रुप ए, उनके ऊपर प्री टेस्ट बिहेवियर चेक करोगे. बट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बी और कंट्रोल ग्रुप बी, इनके ऊपर आप प्री टेस्ट रिजल्ट नहीं देखोगे, इनके ऊपर सीधा ट्रीटमेंट लगाओगे. दैट इज़ अवर सोलोमन स्टडी. ठीक है, तो इसको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू, एक और एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया, वही डांस टीचर वाली. 100 टीचर्स थे, रैंडमली मैंने इनको साइन किया. 25 टीचर्स एक ग्रुप में रखे, फिर 25 टीचर्स एक ग्रुप में, फिर 25 टीचर्स एक ग्रुप में, 25 टीचर्स एक ग्रुप में. ये हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ए है, ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बी है, ये कंट्रोल ग्रुप ए है, ये कंट्रोल ग्रुप बी है. अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ए का प्री टेस्ट रिजल्ट देखा, ट्रीटमेंट लगाई, पोस्ट टेस्ट रिजल्ट देखा. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ऊपर कोई भी प्री टेस्ट रिजल्ट नहीं देखना है, सीधा ट्रीटमेंट लगानी है, पोस्ट टेस्ट बिहेवियर को चेक करना है.
कंट्रोल ग्रुप बी ए में क्या होगा, प्री टेस्ट आपने प्री टेस्ट रिजल्ट देखोगे, कोई भी ट्रेनिंग नहीं दोगे, सीधा चेक करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, दैट इज़ अवर सोलोमन स्टडी। अब इनके प्रॉज एंड कॉन्स क्या होते हैं। प्रॉज क्या है, सबसे बड़ा प्रॉज क्या है, ग्रेटर इंटरनल वैलिडिटी होता है, ग्रेटर इंटरनल वैलिडिटी आपको मिलेगी, एक्स्ट्रा ऑनेज वेरिएबल को काफ़ी हद तक आप कंट्रोल कर सकते हो। कॉन्स क्या होते हैं, एथनिकल प्रॉब्लम होती है, इन तरीके की स्टडी को करना बहुत ही एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, एक्सटर्नल वैलिडिटीज़ बहुत कम मिलती हैं, ठीक है, थोड़ी सी इम्पॉसिबल हो जाती है इस तरीके की स्टडी को कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। सो दैट आर कॉन्स. So this is all about my today topic, in which I have discussed the true experimental design and their types also, and I hope you will all understand this experimental design in a better way, and if there is any doubt, please let me know. Thank you so much.